So, a very good evening to one and all present here, those who have joined this OSH meeting. So, as I Ayush Trivedi, the member of OSH team, will be initiating this OSH session. So, first of all, I would like to tell you all what the OSH is, just because it will be a very new concept for all of you, those who have joined this OSH meeting. So, OSH, which stands for the Open Students Are. It's a platform for the students and by the students, where the students express their views on the topic. The topic could be economically, politically, and socially related as well. So everyone's views on the topic is respected equally. So for today's OSS session, we kept the topic as COVID second wave, alarming condition of the India and the way forward. As we all know that we are in a condition of COVID second wave, and we are passing through with the second wave, which has been seen. The rapid increase of the cases has been seen in the month of April, and the first COVID wave, which was seen till September, when we have observed its maximum number of cases, and the peak was observed in the September. After that, it was the chain was seen as a drastic decrease in the cases. But in April, in the March and April month, we have seen the cases of the COVID-19 has been started drastically. The many scientists and are saying that this is just because the virus has got mutant. It has got mutations. Just because of that, there have been a second mutant which has been came in different countries. So because of that, the cases of the COVID-19 has been increasing all over the world. And as we have also seen in the month of April, India has become the second country which has been affected, or most has been affected by the COVID-19. And it was also being recorded in the month of April that the number of cases was observed was 2.17 lakh per day, and the around deaths were also around 1,000 per day. So it has been seen as an it has also created a panic among the people of India that the second wave has become a more dangerous, and it has also been causing a lot more deaths rates. But overall, if we look at the first wave and the second wave, the fatality rate of the first wave was a lot more than the second wave. But the number of cases which were being observed in the second wave is a lot more than your first wave. Just because of that, the fatality rate does not count as to be. Just because of that, the fatality rate of the first wave was around at 2%, but for this second wave is around 1.3%. So if you look at the cases, number of cases which have been increasing, if you find out it's 1.3%, which is also going to be a large number. So you could say at overall looking at the numbers is that the number of cases and the number of deaths has been increasing in the second wave also. And one more interesting thing which was found in the second wave is that it is affecting a lot more to the younger generations, which comes under the age group of 18 to 45, or you could say 40. This is not just because the first wave was not affecting the people in this age gap, but the only thing is that the people in this age gap were able to cure itself very rapid. They were not falling the death under the death. But in this second wave, the more number of deaths has been observed from the younger generations, or you could say the people those who come under the age of 18 to 45. And it was that the data has also been released from the many parts of the India, or many states from the India, which shows that around 60% of the deaths has been observed below the age of 45 or 40. So that shows that the second wave is more uh, prod, or it's putting more clutches onto the people or to the younger generation also. And one thing which is also very interesting in the second wave is that it is spreading at a very fast pace. As you could say, the number of cases uh,
in the first wave was increasing at the rate first when there was 8,000 cases, and it took around 100 days to reach at the 98,000 cases per day. But in second wave, it took only 50 to 60 days to reach from 8,000 to 1 lakh cases. So you could say the speed of the speed of transaction of these cases and the infection is very fast in the second wave, in comparison to the first wave, which we have seen till the time of September, which was having its peak time. And at present, if we talk about, the cases have been increasing at the rate of 2.17 lakhs per day, and it is also going to be increased because scientists have not seen that any fall in the cases, or we have not seen our peak also in this month. So we are rapidly increasing in the cases, and just because of that, the second wave is more fast rate spreader, and it is also going to increase the fatality rate also, and it is also affecting the more to the younger generations. So these are the few interesting things and interesting facts which have been seen in the uh, second wave of the coronavirus or the COVID-19. And the other thing which has also been seen is that, which was also been interesting in this, is that the RT-PCR test which was being done uh, for testing the COVID-19 was also not very effective for testing in the second wave. In few of the cases which we have seen in the Maharashtra and the Gujarat, it was seen that the RT-PCR test could not give the exact test whether a person is having the COVID, the second wave, or second wave of the COVID-19 or not. In that cases, they were just going to have the CT scan of the lungs, which was able to find exactly that whether the person is being affected with the COVID-19 with a positive rate or not. So these were the few things which were also being seen in the COVID-19 second wave in India, and I think there were also been few of the double mutant cases and few other mutants which have also been seen in India. Like for example, in the South India there was B1.36 mutant of the COVID-19, and in Maharashtra there was a B1.617, which is also spreading at a very fast pace in India. So I think there is a very uh, uh, pace time to take care of yourself and stay home. I think this is the best advice that anybody could give at this time. And I think second wave is going to be spread at a very fast pace till the time we are not going to control it up. So if anyone from the meeting also want to share their observation during this time of the pandemic which we are seeing in India, they are most welcome. Yes, Ayush, I want to add, talk about one thing. जो Yes. कई लोगों की एटीट्यूड ये है कि पिछली बार जैसे कई लोग बोल रहे हैं हुआ बन गया था और कई लोग लॉकडाउन लग गया था तो और लेकिन अल्टीमेटली कई लोग को कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक थे। लेकिन सिचुएशन अगर आप लोग को डिफरेंट देखनी है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मेरे 3 दोस्तों को जो कि मेरी एज के हैं, उनको इस साल डेढ़ साल से कुछ नहीं हुआ। अब जाके उनको सिम्पटम्स आए हैं और कोविड ने असर दिखाया है। और हमारे सुनने में ही हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही हम देख सकते हैं रिसेंटली जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं। तो क्लियरली इसको हम लोग को लाइटली तो नहीं लेना है कि और जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है और ये अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा कि पिछली बार से कई गुना ज़्यादा बुरी कंडीशन है इस वेव की। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें होपलेस होने की ज़रूरत है क्योंकि कि ये रहेगा ही रहेगा। कई लोग ये रीज़न दे रहे हैं कि ये तो कोरोना तो अभी हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि कोरोना है, प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल सर्विसेज़ जो हैं वो क्या बोलते हैं उससे कोप अप नहीं कर पा रही हैं। जो कि कुछ टाइम में कंट्रोल में आ जाएगा मेडिकल सर्विसेज़ के। क्योंकि प्रेज़ेंटली अगर किसी की सिचुएशन खराब हो रही है तो उसे मौका भी नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को हील कर सके, अपने आप को बचा सके सारी बेस्ट एफर्ट्स डाल के। क्योंकि लोगों के पास बेड्स नहीं है, लोगों के पास बेसिक दवाइयाँ नहीं बची हैं मार्केट में क्योंकि कुछ टाइम पहले नवंबर-दिसंबर टाइम में जो
मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपनी कैपेसिटी कम कर दी थी सिचुएशन को देखते हुए। मतलब सिचुएशन इस तक हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, जनवरी तक ही कह लें कि लोगों ने अपनी कैपेसिटी कम कर दी थी। लेकिन अचानक से जो नया वेव आया है, इसको इसको इसी यही रीज़न है कि अचानक से इस वेव के आने से दवाइयाँ और बेसिक जो इक्विपमेंट्स हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आने वाले 1 डेढ़ महीने में चीज़ें कैच अप कर लेंगी, बिल्कुल। लेकिन इस टाइम पे हमें पार्टिकुलरली बच के रहना है अगले 2 महीने, डेढ़ से 2 महीने एट लीस्ट, जब तक हमारी मेडिकल सर्विसेज़ कैच अप ना कर लें या केसेज़ कंट्रोल में ना आ जाएँ। तो एक ये पॉइंट्स हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि अगर आप लोग के सामने कोई भी रीज़न दे कि कोरोना तो हमेशा रहेगा या इस तरह, तो उन्हें प्लीज़ समझाएँ कि अगले 1 डेढ़ 2 महीने कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Aditya, for sharing these wonderful words. I think you're saying right. If there would be more number of cases, it would be just a threat to the healthcare system of the India. As we all know, the number of beds and the medical facilities in the Indian hospitals are also going to be decreased as per the shape. As we could also see the cases of the Lucknow itself. There have been the hospitals in Lucknow, or you could say many other cities of the India itself, where the number of beds in the hospitals has also been become very less. So because of that, the patients could not get into the hospital. Whether so that is only the case. We could say whenever the patient goes to the hospital, it dies very frequently, just because they are only admitting those people, those patients only, those who have very less percentage of the chances. So that is only the that is also the reason why the patients are getting died very soon. So I think you will have to take care of your own self, and that is only the best advice that anybody could have. And this is also not the time to be panic. This is also the time to be alert all the time, so that you could be alert whatever the things are going on around you. So if anybody else wants to share their observation in this tough time or in this pandemic time, they are most welcome. आयुष, आई वांट टू ऐड। मुझे इसमें कुछ चीज़ें ये बतानी है, जैसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बीमार है तो उसे हॉस्पिटलाइज ही करना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कल भी एक डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसमें जैसे मैम ने बताया था कि अगर ऑक्सीजन लेवल हमारा 90 या उससे 90 या 92 से नीचे है, तो हमें मतलब डरने की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। और अगर 95 या 90 के ऊपर है तो उतनी दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम घर में भी आइसोलेट होके रह सके तो कंडीशन कंट्रोल में की जा सकती है। और इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स हम लोग, जैसे पिछली बार हम लोगों ने बहुत डेडिकेटेड होके ये सारी वेबिनार्स भी किए और इतने सारे लोगों ने काम भी किया ऑन फील्ड, तो अब उसी तरीके की अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना और खाने पर खास करके कंट्रोल करना, और जितने भी ज़्यादा हो सके लाइट फूड खाना और ठंडी चीज़ों से बचना। और जैसे पिछले साल ही हम लोगों ने ये किया था कि कोई भी चीज़ें अगर बाहर से आ रही हैं तो उसको गुनगुने नमक के पानी में धुल के रखना। मतलब पिछली साल वाली ही चीज़ों को फिर से अब करने की ज़रूरत है, जो कि कहीं न कहीं जनवरी के बाद से हम लोगों ने काफ़ी रिलीफ हो गया था हर कोई कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो हम लोगों ने पिछले साल देखा था। लेकिन कहीं न कहीं अब वो फिर से उससे बुरी कंडीशन में चीज़ें वापस आ रही हैं। तो और कुछ हद तक ये देखा गया है कि लोग जो है पैनिक होने के चक्कर में पैनिक हो जा रहे हैं और दवाइयाँ कंज़्यूम करके रखना चाह रहे हैं कि अगर इन केस उनकी तबीयत खराब हो तो वो उसे कंज्यूम कर सके। तो ऐसा करना भी गलत है, क्योंकि हम खुद ही जान रहे हैं कि मार्केट में इस समय दवाइयों की बहुत शॉर्टेज है। तो हम अपने लिए वो सारी चीज़ें करें जो अवेलेबल हो आसानी से। जैसे आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी जो दवाइयाँ कलेक्ट करना या उनको रखना, ये थोड़ा उनके साथ गलत होगा जिनको उनकी सच में ज़रूरत है। और अगर हमें कोई कम्युनिटी के लेवल पे काम करना है, तो हमें एक काम ये करना चाहिए कि जैसे हमारे लोकल मार्केट्स में है,
शायद अभी लखनऊ में ही अमीनाबाद या हजरतगंज के मार्केट में जो ट्रेड की अपनी कम्युनिटी होगी उनकी, उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि वो हफ्ते में या इस हफ्ते दुकानें नहीं खोलेंगे, पूरी तरह से बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि सरकार ही इनिशिएटिव ले। अगर सरकार नहीं ले रही है इनिशिएटिव तो अल्टीमेटली लाइफ हमारी है, तो हमें ये सब चीजें सोचनी चाहिए कि हम कम से कम बाजार जाएं। और अगर ऐसा कुछ है कि हम खुद से ही कर सकते हैं, एक लॉकडाउन वाली कंडीशन हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं कि बाहर ना जाए या मार्केट में भी एक दिन डिसाइड करके उसे बंद करें, तो काफी हद तक कंडीशन सही हो सकती हैं। और सीधे बस यही कहना है कि सब कंडीशन को ऐसा भी नहीं है कि बहुत लाइटली लेना है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैनिक हो जाना है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हम अपना नुकसान करेंगे। कहीं ना कहीं हमें इससे एक तरीके से जागरूक होके और बच के रहने की जरूरत है। हेलो। Thank you so much. Yes, you want to share anything, Anjali? हेलो, Yes, you are आवाज audible. आ रही? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी, मुझे ये लगता है कि इस बार जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। उसका रीजन ये है कि 90% लोगों के घर में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जुकाम खांसी फीवर है लोगों को, लेकिन डर की वजह से बहुत सारे लोग जा ही नहीं रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। जब ऑन टाइम, यानी कि जिस समय, क्योंकि इस बार का जो वायरस है वो 3 दिन, स्टार्टिंग के 3 डेज बहुत इनिशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें किसी ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो वो बहुत हार्मफुल हो रहा है किसी भी एज के लिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि कोई मतलब बहुत ज्यादा एज का है उसको ही प्रॉब्लम करेगा, यंग एज के लोगों को भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग के 3 डेज में वो 70% लंग्स को अफेक्ट कर दे रहा है। तो ऐसे में जो है लोग क्या कर रहे हैं कि अगर किसी को हल्का फीवर भी आया है या फिर खांसी जुकाम भी है तो वो ये करने की बजाय कि जो है टेस्ट करा के मेडिसिन लेना शुरू करें। नहीं नहीं, ये तो अभी मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से हो रहा है, ठीक है हम 2 दिन ऐसा करेंगे। इसकी वजह से बहुत सारे लोग, क्या होता है जब एकदम सीवियर सिचुएशन आ जाती है तब वो फिर दौड़ना शुरू करते हैं कि अब कहाँ से हेल्प मिल सकती है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ये भी मुझे लगता है कि इतनी खराब सिचुएशन होने के बाद भी अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो अभी भी गवर्नमेंट को बोलना पड़ रहा है कि हम 1000 रुपीज आपके हम 1000 रुपीज और 10,000 रुपीज का वो लगाएंगे जब तक कि आपको मास्क मतलब पहनने के लिए, अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो आपको 1000 रुपए फाइन देना पड़ेगा, दोबारा नहीं पहने हैं तो 10,000 रुपए। अभी भी लोग ऐसे टहल रहे हैं मार्केट में ना कि उनको कुछ नहीं हुआ है, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं है, सिचुएशन सब नॉर्मल। अभी भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गलती है वो हम लोगों के बीच की है क्योंकि हम लोग इस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मतलब हम बता रहे हैं जो कि खुद इस बार इस फेस को जिसने झेला है, हमें लग रहा है कि मतलब क्या कैसे हैं लोग, कैसे हैं, मतलब इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद भी नहीं समझना चाह रहे हैं कि हमें टाइम में रहते हुए, मतलब अगर प्रॉब्लम शुरू हुई है तो हमें तुरंत अपनी जांच करा करके मेडिसिन लेनी है, केयर करनी है। तो आपका ये ऑक्सीजन लेवल के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज वगैरह बताई गई हैं, अगर आप उनको ध्यान में रख रहे हैं तो चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन उसको समझने के बजाय जब एकदम लास्ट सीवियर केस हो जाता है तब वो चाहते हैं कि हाँ अब जब कुछ नहीं, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना, अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी, अब मुझे सब कुछ चाहिए। ये प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। Exactly, exactly. तो मुझे तो यही कहना है, आप सभी यंग हो अभी, जैसे बीच में कुछ इश्यूज वगैरह आए थे क्लासेस को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर के, कि मुझे ये लगता है कि लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर हम रहेंगे तो शायद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम है ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और लोग जो है इस चीज को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से केयर करनी है। मतलब जैसे कुछ चीजें बोली गई हैं कि आप 1 वीक लगातार भाप लेते रहिए और गर्म पानी लीजिए, आपको दिक्कत है भी तो भी और दिक्कत नहीं है तो भी लीजिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो घर पे रह रहे होंगे, अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं होगा तो शायद भाप नहीं ले रहे होंगे। पिछली बार हम लोग ज्यादा सिंसियर थे इस चीज को लेकर के, लेकिन इस बार इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद भी वो सिंसियरिटी नहीं दिख रही है। ये हम राजाजीपुरम एरिया की बात बता रहे हैं।
मतलब ये इतनी खराब सिचुएशन है, मोस्टली एरिया का मतलब सील्ड है यहाँ पे, लेकिन तब भी यहाँ पे लोग, जिस एरिया में पुलिस नहीं दिखती है उस एरिया में लोग विदाउट मास्क आराम से टहल रहे हैं। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि हाँ, हम लोग गलती ज्यादा से ज्यादा हमारी है, क्योंकि हमने पिछली बार तो इस चीज को की सीरियसनेस को समझ के चीजें फॉलो की है, इस बार हम उस लेवल से कर नहीं रहे हैं। और जब क्योंकि ये म्यूटेट हुआ है, पिछली बार उसको नॉर्मल होने में, यानी वो आपको इफेक्ट करने में लंबा समय ले रहा था, इस बार सिर्फ 3 दिन है, इनिशियल स्टार्टिंग के 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो फिर वो आपके मैक्सिमम आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा चुका है, और फिर वो जाहिर सी बात है आपका ज्यादा नुकसान कर जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो फिर भी सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज तो यंग, मतलब यंग एज के लोग भी इस बार बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं उनकी, यंग एज के लोगों की, जो मेरे कांटेक्ट में है ऐसे बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग सिर्फ पैनिक होके भी जो है, मतलब नुकसान हो रहा है लोगों को कि नहीं नहीं, अगर जुकाम बुखार है तो ये सोच रहे हैं नहीं नहीं मुझे हो गया है, इसलिए भी परेशान हो रहे हैं। तो ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस यस मैम। मैम। आयुष, मुझे एक चीज़ इसमें ये बतानी थी कि अभी भी कुछ लोगों का ये हाल है कि अगर उनकी कोरोना पॉजिटिव आ रही है टेस्ट रिपोर्ट, तो वो बता नहीं रहे हैं लोगों को। तो हाँ ये तो बहुत बड़ी एग्जैक्टली, गलती है, क्योंकि एग्जैक्टली, लोगों को बताना चाहिए। यस मैम। कि अगर आ रही है तो कम से कम अगर आप किसी के टच में आए हैं तो स्पेशली आप उन्हें जरूर बताइए कि हाँ, हम आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम लोग कांटेक्ट में आए हैं और ध्यान रखने की जरूरत है। एटलीस्ट कि जिन जिन जगहों से आप पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन में कांटेक्ट में आए, एटलीस्ट वहां तो जरूर बताइए। आप सब जगह शेयर नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सिचुएशन ये भी है कि आपके आसपास के लोग ही आपका साथ नहीं देंगे। अगर आपको लगता है जैसे मतलब मेरे घर में मैं और मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव, लेकिन आसपास के लोगों का ये होता है ना कि अगर आपको रेगुलर नीड की चीज भी चाहिए ना तो वो आपको नहीं देंगे, अगर आपका दरवाजा सील हो गया है तो, है ना। तो सब जगह आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पे जिन भी जगहों से आप लोगों से जुड़ के आए हैं उनको हार्म होने का है, आपको वहां जरूर बताने की जरूरत है। आप उन लोगों से जरूर बताइए, उन लोगों से जरूर कहिए कि हाँ आप लोग अपना जांच करा लीजिए, या फिर ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। I think this is not the time to be panic and this is a time to be alert. I think we all are suggesting कि हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर हम लोग को कुछ भी कैसे भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हम लोग को पहले से ही टेस्टिंग करानी पड़ेगी। और बात करें टेस्टिंग की तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आजकल क्राउड हो गया है कि टेस्टिंग कराते टाइम पे भी बहुत लोगों को रिपोर्ट्स भी बहुत जल्दी नहीं मिलती हैं। और अगर वो लोग बाहर टेस्ट कराने के लिए भी जाते हैं तो उनको लाइंस में लगना पड़ता है या फिर जल्दी रिपोर्ट्स नहीं उनको मिल पाती, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। सो इवन आयुष, ये सिचुएशन है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो टेस्ट करा रही थी, उन्होंने जानते हुए उन्होंने तो ये बोल दिया है कि आफ्टर 14 डेज ऑफ आइसोलेशन आप जो है अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप दोबारा जांच नहीं कराएं, आप नॉर्मल हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन हो चुका है, इतना ज्यादा बर्डन हो चुका है कि अब वो जांच कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब क्योंकि केसेस इतने ज्यादा आ गए, अब उन्हें उनका ध्यान रखना है तो अब वो टेस्ट कराएंगे, क्योंकि अभी तक ये था ना, जैसे किसी घर में एक केस आया तो वो जाते हैं वहां पे जाके बाकी फैमिली के लोगों का घर पे ही चेकअप कराते हैं, उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप बाहर मत निकलिए। पर आज की सिचुएशन ऐसी हो गई कि इतने ज्यादा केसेस आ चुके हैं कि अब वो उनकी केयर करने में उनका सारा टाइम लग रहा है, उनका सारी मैन पावर लग रही है कि अब वो जा करके चेक भी नहीं कर सकते हैं। ये सिचुएशन हो गई है। yes ma'am. So if there anyone else who want to share his or her observation during this time is most welcome. प्रिकॉशंस बहुत हेलो। इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो प्लीज प्रिकॉशंस जरूर फॉलो कीजिएगा जो भी बताए गए हैं। जितने भी प्रिकॉशंस, ये जो भाप लेने वाला है, गर्म पानी पीने वाला है, और क्या कहते हैं, मास्क और सैनिटाइजेशन का, ये 4 चीजें तो प्लीज जरूर ही करिए, इस समय बहुत ज्यादा नीड है इसकी। आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो भी, नहीं दिखते हैं तो भी, आप बाहर जा रहे हैं तो भी, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस बार जो वायरस है वो एयर में भी ज्यादा तेज, एयर जैसे मतलब लग रहा है कि एयर से भी फैल रहा है बहुत तेजी से।
जैसे पहले हाँ। ये था कि आप टच में आए हैं तो शायद डर होता था, लेकिन इस बार लग रहा है एयर के थ्रू फैल रहा है ज्यादा तेजी से, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 90 से 95% लोगों के घर में इस समय जुकाम, खांसी, बुखार इस तरीके के पेशेंट अवेलेबल हैं। 95% लोगों के घर में ऐसा है, और उसमें से अगर जांच सभी की हो तो कई सारे लोग ऐसे निकलेंगे जिनको सच में ऐसा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी आज के टाइम के समझ चुके हैं कि लगभग लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप ऐसे ही घर के आसपास के डॉक्टर के पास भी जा रहे हो और अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो भी आपको वही मेडिसिन दे रहे हैं जो स्टार्टिंग के जो 3 डेज के इफेक्ट हैं उनको मिनिमाइज करती है, कम करती है और कंट्रोल कर लेती है। मतलब हमको तो ऐसे ही थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, फिर ना फीवर था ना कुछ और थी, थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था, उसकी जांच के लिए मैं गई थी, उसके लिए मैं गई थी, और मुझे उन्होंने कोरोना की मेडिसिन दे दी थी। मुझे पता नहीं था कि मैंने पहले ही खा लिए ये मेडिसिन। बाद में मुझे पता चला कि हाँ मैंने ये मेडिसिन ऑलरेडी खा रही थी, लेकिन फिर भी मेरा पॉजिटिव टेस्ट आया है उसके बाद भी, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई थी इसलिए। तो इस यस वजह मैम, से इस बार ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि एग्जैक्ट सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव नहीं शो करता है आरटीपीसीआर टेस्ट में। सो हाँ इसकी बिकॉज वजह से कई सारी हाँ जगह पे सिटी स्कैन कराया गया है लंग्स का, सो दैट दे कुड हाँ प्रॉपरली टेस्ट कि उसके अंदर कोविड-19 पॉजिटिव है कि नहीं है। सो आई थिंक ये एग्जैक्टली। सेकेंड वेव में भी ये देखा जा रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए। हाँ और वो जो आपने अ, बोली कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फैल रहा है, उस बात पे हम्म हाँ, ये साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है कि जो जो इन्फेक्शन 10 मिनट में हो रहा था, वो अब 1 मिनट में हो जा रहा है कॉन्टैक्ट में आने बहुत पे। स्पीड में हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है। मतलब मैंने राजाजीपुरम का जो 90% एरिया है वो पूरी तरीके से लॉक है, सील है। मतलब तो हम अपने आस हाँ अपने आसपास का एरिया का हम मतलब बता रहे हैं, और जबकि जो है डॉक्टर्स वगैरह ने भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने, जो आसपास के अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्होंने जबकि पहले से जो है इस तरीके से मेडिसिन वगैरह अच्छी देनी शुरू की थी। मतलब मेरे घर में तो, मैं अपने घर का ही केस बता रही, मेरे पापा को प्रॉब्लम यहाँ से नहीं हुई थी कि उन्हें बुखार आया था या खांसी थी। उन्हें उन्हें वीकनेस हो गई थी, चक्कर आ रहे थे उन्हें। वो एक दिन में 4 बार बेहोश हुए हैं, और उसके दूसरे दिन उन्हें फीवर आया है, तीसरे दिन से उनको जुकाम हुआ है। ये 3 दिन लिए हैं उसमें प्रॉब्लम होने में। और स्टार्टिंग में अगर आपको चक्कर आ रहा है तो आप कभी नहीं सोच सकते कि आपको कोरोना हुआ है। आप सोचेंगे कि या आई थिंक कुछ वीकनेस हो गई है किसी रीजन से, क्योंकि एज भी अच्छी है, 61 ईयर कम नहीं है। तो इस वजह से इस समय तो लोग यही सोच रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बट ये अच्छी बात है कि मेरे डॉक्टर अच्छे थे, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही 1 दिन की मेडिसिन, मतलब पापा को जो मेडिसिन दी थी वो उसी से जुड़ी हुई दी थी, इसलिए सीवियरिटी नहीं हुई। ये अच्छी बात थी। तो मेरा मतलब यही कहना है कि अगर आपको लग रहा है तो घर पे घर की दवाइयाँ यूज कीजिए। भाई काढ़ा आपको बोला जा रहा है, आप काढ़ा लीजिए, लेकिन उसके साथ बाकी प्रिकॉशंस भी लीजिए। अभी भी देखिए, पिछली बार जब चीजें थी तो लोग घर पे आते थे, हर चीज धुल रहे थे, लेकिन आज देखो क्या उतनी उतनी अच्छे से आज भी चीजें आके घर में धुली जाती हैं। आज हम लोग उतने अच्छे तरीके से हर चीज को धुल करके इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से शायद इस बार केसेस बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं हर जगह। इस बार फैलने की स्पीड ज्यादा है और हमारे प्रिकॉशन की स्पीड कम है। Yes, ma'am. So if there anyone else who want to share something, Hello, yes, Sagar. I will share something my thought about the coronavirus. तो इसमें सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग अपने आप को इतना वो सैनिटाइज नहीं करते हैं, बाहर हम ऐसे ही निकल जाते हैं। और वैसे भी सरकार बार बार कहती है 2 गज दूरी, और कहीं भी इनके अगर सरकारी हेडक्वार्टर वगैरह कहीं भी देखो तो वहाँ खुद लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं कि 2 गज दूरी है, सब बिल्कुल ऐसे ही भीड़ लगाए हैं। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मतलब ये कोरोना अब इतना पहले जैसा नहीं रहा, कि मतलब अब तो ज़्यादा वो जीन्स पे उसके फर्क आया है। वो अब तो जैसे 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 सेकेंड वेव में आप जान ही रहे हैं कोरोना कितना खतरनाक हो गया है। तो इस वजह से अब तो ज़्यादा हमें अपने आप पे, मतलब अपने आप या लोगों को अपने आप पे ध्यान देना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अब ज़्यादा लाइटली लेने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही जानते हैं कि कुछ लोग की मजबूरी भी होती है कि मतलब उन्हें फील्ड वर्क वगैरह है तो बाहर जाना ही है, तो काम करना ही है, लेकिन अगर हो सके तो घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। तो वो लोग अपने हिसाब से घर पे रहें और काम करें। और अगर मान लो तुम्हारा फील्ड वर्क है तो अपने आप से सचेत रहें, मास्क लें, और जैसे कि अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेने की आदत है तो वैसे ही एक बोतल सैनिटाइज़र की लें और उसे बार-बार यूज़ करते रहें हर जगह पे। तो ये भी जिससे कि हम काफ़ी मतलब बचे रह सकते हैं। और और हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सुबह उठते उठते आधा या 1 घंटा हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत बने। और जिससे कि हम अगर मान लो कभी गलती से कोरोना के कांटेक्ट में मतलब आ जाते हैं जैसे भी करके, तो वो हमें इतनी जल्दी इफेक्ट ना करे। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये जो कोरोना की जो वैक्सीन आ गई हैं वो अभी इस पे काम ज़्यादा तेज़ी से सरकार कर नहीं रही है, क्योंकि वो अपने चुनाव पे भी ध्यान दे रही है और इधर जो वैक्सीन लग रही है उस पे भी ध्यान दे रही है। इसी कारण वो ये टाइम ऐसा क्रिटिकल समय है कि कोरोना के केस और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, अब लोग और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब जल्दी से जल्दी सबको हो सके तो वैक्सीन का प्रबंध करवाएं, जिससे कि पहले जैसी ज़िंदगी वापस स्टार्ट हो पाए धीरे धीरे करके। तो हाँ सागर, वैक्सीन किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, आपको प्रिकॉशंस तब भी रखने हैं। वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। तो इसी वजह से पहले ये जो हमारे यहाँ के मतलब बड़े लोगों की बात की गई है, एजेड लोगों की बात की गई है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स और बाकी चीजें और ज़्यादा जल्दी से, यानी यंग लोगों में जल्दी से बनती हैं, स्पीड में बनती हैं। इस वजह से उनको बाद में रखा गया है, पहले इन जो एजेड लोग हैं उनको कहा गया है। सिर्फ इम्यूनिटी को एनहांस करती है कोरोना ये वैक्सीन। इसके अलावा आप ऐसा नहीं है कि उसको लगाने के बाद आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। और पॉजिटिव होने पर अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम पहले से है तो ऑब्वियसली आपकी आपकी जो है सीरियसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रिकॉशंस हमें तब भी लगने हैं, अगर वैक्सीन लग जाती तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम एकदम आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। हमें प्रिकॉशंस, ये मास्क सैनिटाइजर का प्रिकॉशन हमें अभी लेना ही लेना है। हमारी गलती, ये जो इस बार केसेस बढ़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी यानी ये गलती ही यही है कि हम लोगों ने पिछले साल तो स्टार्टिंग में बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा। जैसे ही केसेस कम होने शुरू हुए हमने एकदम हल्के में ले लिया कि अब नहीं हो सकता है। ये होली के भी सीजन, अगर इस होली को भी आप देखो तो होली में आप अमीनाबाद मार्केट या किसी मार्केट निकल जाते, 90% लोग विदाउट मास्क शॉपिंग कर रहे थे। और यही लोग हैं जिनकी वजह से केसेस, और इस बार मतलब केसेस तेजी से इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस भी एक दूसरे को बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो अगर एक आदमी भी इन्फेक्टेड हुआ एक जगह पे, घर जाकर के उसने अपने घर के 10 लोग, 5 लोग, 7 लोग जितने हैं सबको इन्फेक्टेड कर दिया है। तो इस वजह से प्रिकॉशंस तो हमें बंद करने ही नहीं है, ये प्रिकॉशंस। और दूसरा, सुबह ये चीज अच्छी बोली आपने, इम्यूनिटी पे काम करना है, दैट मीन्स मॉर्निंग में योगा एक्सरसाइज जरूर करनी है हमें। और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जो भी खाने पीने की चीजें बोली जा रही हैं, जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं हमारे लिए, जो हमारे पुराने लोगों ने बताए खाने पीने की चीजों में इन्वॉल्व करने के, वो सब चीजें हमें एकदम अच्छे से फॉलो करनी है। किसी भी सिचुएशन में अभी हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम एकदम सेफ सिचुएशन में फटाफट वैक्सीन से नहीं आएंगे। यस मैम। और एक बात और भी थी कि वैक्सीन से रिलेटेड इट वाज सेड दैट वील हैव टू vaccinate almost around 40% of the people of the country for the case of India itself. But this battle is too far because just till now we have completed only around 7 to 8%. तो वैक्सीन को बढ़ाना पड़ेगा, वैक्सीन के रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके।
और जैसा कि मैम ने भी बोला कि वैक्सीन लगने के बाद ये नहीं है कि आपके कोरोना नहीं हो सकता या कोविड सेकेंड वेव से आप नहीं हो सकता वो आपके। दिस इज ओनली कि आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो सकती है सो दैट आपको इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं जाना पड़ेगा, आप कोविड की इतनी ज़्यादा सीवियर स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे। आपको माइल्ड फीवर या फिर माइल्ड सिम्टम्स शो हो सकते हैं कोविड के, आपको सीवियर डिसीजेस या फिर सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। सो दिस इज ओनली द यूज ऑफ वैक्सीन. So we'll have to take care and we will have to take all the precautions after having the vaccine also. So I think this was a way forward with the present time to all the people those who have taken the vaccines. तो कई सारे स्टेट्स में विद इन द महाराष्ट्र और यू कैन से द दिल्ली, वहाँ पे ये भी डिमांड की जा रही है कि वैक्सीन के एज ग्रुप को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीन 45 ईयर्स के ऊपर या 45 ईयर्स तक ही लग रही थी, जबकि ये देखा गया है कि सेकेंड वेव से काफ़ी सारे जो डेथ नंबर्स हैं वो यंग जनरेशन में मोस्टली फील किए जा रहे हैं। अराउंड 60% ऑफ द डेथ्स जो है वो जो 18 से 45 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं लोग, उनकी हो रही है। सो इट वाज बीन डिमांडेड फ्रॉम द दिल्ली एंड द महाराष्ट्र एंड द गुजरात इटसेल्फ कि वहाँ पे वैक्सीन्स को आप लोग सप्लाई करिए और 18 या फिर 21 ईयर्स तक या 25 ईयर्स तक लोगों को वैक्सीनेट करिए। सो आई थिंक हमें अपना परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा टू द ऑफ द वैक्सीनेटेड पीपल, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली वे by which we could win the battle of the COVID-19 or the second wave of the virus. So if there anyone else who has any observation in this pandemic time is most welcome to share up. मुझे एक लास्ट चीज बोलनी है, अगर किसी और को ना बोलना हो, कि इस वक्त जैसे सब लोग शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे और उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, उनके जानकारी में जो चीज़ें आ रही हैं कि कहाँ पे सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ पे ये दवाई मिल रही है, कहाँ पे लोग हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ें प्लीज़ करते रहें और लोग और प्रमोट करें इस चीज़ को, क्योंकि अभी हो रहा है, कुछ टाइम में डाई डाउन हो जाएगा, तो इसको ऐसा ना होने दें, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन क्रिटिकल है तब तक लोगों को ऐसे हेल्प की ज़रूरत है कि उन्हें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी मोटी हेल्प भी किसी की लाइफ बचा सकती है। तो प्लीज़ शेयर करते रहें चीज़ें जो जो आपके लगातार जानकारी में आते रहे, और साथ ही साथ जो चीज़ें कई लोग फेक चीज़ें भी, फेक नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स वो कर रहे हैं, उसे भी प्लीज़ रिफ्यूट करते रहें कि ये गलत है। तो बी विजिलेंट, बस यही रिक्वेस्ट है सबसे। थैंक यू। Yes, Aditya, I think you're saying right. Just because of the shortage of many of the medical facilities in the cities like Lucknow or in Delhi, it is the most required to share the details, to share the authentic details where these things are available, so that the patients, those who are exactly in need of these things, could actually take those things up at the time when the time it is being required. Just for example, the case of oxygen cylinders, which is in lot of demand at the present time, just because these are the oxygen cylinder is the only cure which you could give to the person or the patient who is suffering from any lung disease or, for example, the COVID also. So I think these things, the proper authentic information should be shared with all of us. If we know it is authentic, first of all, we all should have to check whether it is authentic or not, then try to share it up. So if anything has been left out to share, then we could. Otherwise, we could wrap the meeting. एक बात मुझे और इसमें ऐड करनी है कि जैसे भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो भीड़ लग रही है उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी ऐसा हो सकता है कि हम वैक्सीन लगवाने गए और हम फिर कोरोना पॉजिटिव होके वहाँ से आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी कई जगह ऐसा देखा गया है कि भीड़ की वजह से वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है लोगों को, क्योंकि मास्क के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सिक्योर हैं। तो वहाँ पे या तो कोई पुलिस पर्सोनल्स रखे जाएँ या फिर हम खुद भी इतने जागरूक हैं, इतना हमें ज़रूरत नहीं है दूसरों की कि हमें कोई आके बताए, हम सब कंडीशन जानते हैं। तो ऐसा हमें खुद भी करना चाहिए कि हम खुद ही दूरी बनाएँ और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको समझाएँ।
Yes, exactly. There have been also few of the volunteers also, those who are working on those areas of the vaccine centers. Those who are telling to the people there is a need to take the precautions at the time when you are there at the vaccine centers. So I think we could also do these things whenever we are going to the vaccine centers. Don't make any kind of crowd and follow all the precautions which has been said. And this is the most high time for all of us to take all the precautions, because jaan hai to jahan hai. This is the last word that I would like to convey to you all. And be at your home, and that would be only the safe uh, decision that you could take at this time. So if there anything which has been left out, or any observation or anything which has been left to आयुष, share out. एक चीज और, अभी हम लोग जैसे न्यूज में देख रहे हैं कि लोग अगर नहीं ट्रीटमेंट मिल पा रहा है उन्हें, तो वो डॉक्टर्स को ब्लेम कर रहे हैं और उनको उन पर चिल्ला रहे हैं। तो ये जानने वाली बात है कि डॉक्टर्स खुद भी, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई पेशेंट उनके सामने ऐसे डेथ हो जाए उसकी। तो ये कंडीशन है हमारे हेल्थ सिस्टम की कि इस समय ऐसी चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो डॉक्टर्स को ब्लेम करना ये सही नहीं है। और दूसरी चीज की उनको उन पर चिल्लाना या उन पे ऐसे अटैक्स करना वो बिल्कुल गलत है। तो ये सारी चीजें जो अभी न्यूज में देख रहे हैं हम, वो मुझे ऐसा लगा कि ये बोलना जरूरी है कि हमें डॉक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी देखना है कि डॉक्टर्स में भी तो फर्टिलिटी रेट है, वो भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो कोविड की वजह से अब हमारे बीच में नहीं है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए चीजें। Yes, exactly. We'll have to take care of the frontline workers, your all the doctors, just because these are working at the time when you are there at your homes. So this is a time. This is the only fault of our healthcare system, and I think within a 1 year we have taken a very big lesson that our healthcare system is not fit to combat with all the people for the whole of the population of the big country like India. So we'll have to take the measures to properly uphold with the situation, and we'll have to. This is a high time to improve our healthcare system in India. So if now also if anything being left out, Aditya. Yes, regarding vaccine, I want to tell आप लोग के आसपास जो लोग भी एलिजिबल हो प्लीज उनको वैक्सीनेट करवा लें। अगर कई लोग ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि होने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है तो वैक्सीन काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इम्यूनिटी, ना कि प्रिवेंट करना। तो कई केसेस में प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन इम्यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो उसको ऑलमोस्ट 2 महीने लगते हैं पूरी तरह से असरदार होने में, क्योंकि पहली बार में सिर्फ वो इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में, उसके बाद 2 महीने दूसरे डोसेज में वो इफेक्टिव होता है। तो प्लीज वैक्सीन जो भी एलिजिबल लोग हैं 45 के अबव, उनको बोलने की जाके लगवाएं, क्योंकि कई वैक्सीन वेस्ट हो रही हैं कई जगह लोगों के ना लगवाने की वजह से। Yes, exactly. There is not any fault in the vaccine. You will have to go forward for being vaccinated, because this is a time to एंड get vaccines वन proper मोर at a time. एंड वन मोर थिंग कि नए नए जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं उसमें ये डाउट है लोगों को कि इफेक्टिव है कि नहीं नए स्ट्रेन्स के लिए। तो प्रेजेंटली इंडिया में जो मेजर हैं डेथली वो स्ट्रेन्स, वो 4 हैं टोटल। 2 यूके के, एक साउथ अफ्रीका का और एक और कहीं और का है। तो बाकी 3 के अगेंस्ट तो इफेक्टिव है, एफिकेसी उतनी ही है सारे ये एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सीन दोनों की। लेकिन जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसके अगेंस्ट 10% है, मतलब ना के बराबर। तो आप लोग मोस्टली ट्रस्ट कर सकते हैं, और अरे कोई भी रीजन हो, मतलब इफेक्टिव है वैक्सीन, ऐसा कह सकते हैं। Okay. So I think we have discussed everything about this second wave of the COVID virus. So I think now this is the time to wrap our OSS session. I think we all have shared our observation, what we have observed during this pandemic time,
and we have also shared few of the precautionary measures, also how we will have to take this uh, precautionary measures at the time when we are there at the home. And we have also shared few of the problems which has been felt while doing a test or while we are admitting to any of the hospitals. So I think these are the problems of the healthcare system and our healthcare infrastructure. So that is also needs to be improved in the future and at present time also. So the only thing we all could do is we could stay at our home, and we'll have to follow all the norms and precautions, and that is only the best thing we could do, because the second wave virus is spreading at a very fast pace, and we have also not seen at we also don't know when we will reach to the peak point and what would be its highest number of cases per day, because at present also the graph is increasing at a very fast pace, and we haven't seen any fall down. So we have not gone to the peak point also. So we don't know when the peak point will going to be reached at. So the only thing we could do is we'll have to take care of ourselves and be at our home and follow all the precautions and all the norms. That's it for this OSS session. And thank you so much for joining. And thank you.